Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. First of all, we are here at THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology. As a part of Energy Conservation Campaign of Government of India, Social Media Center of THDC India Limited has organized this digital dialogue based on the theme Innovation and Energy Conservation Need of the Hour. And we are privileged to have with us Professor Rajat Agarwal from IIT Roorkee. He is going to express his views and share his experience on the topic. And I'm looking forward to have a very quality conversation with Professor Agarwal. Professor Agarwal, welcome to the THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology. Thank you. In collaboration with Social Media Center, we have conducted this digital dialogue. And you know that the theme is very relevant, that is innovation and energy conservation, need of the hour. So my first question to you is, there is a general saying that energy produced is equal to energy conserved. What is your take on that? Absolutely perfect. And if I go with the topic of this dialogue, innovation and energy conservation, need of the hour. So there are two terms in this. One is innovation and second is energy conservation. And if I see both these terms separately, both are need of the hour. We get competitiveness because of innovation present day, and Government of India, various ministries, various trade bodies, they all are expecting that what new innovations we can drive to be more competitive in this scenario. So innovation is certainly the need of the hour without any doubt. The second point is energy conservation. Now energy conservation, as you very rightly said, that what we save is equal to what we produce. So we have limitation of production. We cannot create new sources of energy in a day, and at the same time our progress is monitored by per capita energy consumption. So if we are able to save energy, that can be added into our production cycle, and that will help us to use energy more efficiently for our various sectors which really require energy. In fact, we need to promote energy use in those profitable sectors where it is actually required, and we need to reduce the uses of energy where we are not getting any profitable output from that energy. To give you one example, like if we are standing on a red light and our engine is on and we are waiting there for 90 seconds, 120 seconds, and now sometime even 180 seconds also. So that is no useful use of energy. So can we avoid those type of things? We need to drive. I don't say that we don't drive. We need to go to offices. We need industries where energy is required. We are doing this conversation. We need energy so that we can have a better recording. But wherever we are wasting the energy, so our first target is to eliminate the wastage of energy. And as per the reports, just 20% of the energy is wasted in our household activities. So that is a big sector which can be targeted for energy conservation. And you can say, if I can save 20% energy in my daily household activities, it is equivalent to 20% additional production of energy. This is how I can explain your point. I would just like to continue the conversation. जैसा भी आपने बोला, हम सब जानते हैं कि हम THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बैठे हैं। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप भी IIT रुड़की से संबंध रखते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक का जो करिकुलम है, उसके अंदर क्या आपको लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग पर उतना स्ट्रेस दिया जा रहा है? और अगर नहीं दिया जा रहा है तो किस तरीके से करिकुलम को हम रीफ्रेज कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर और अधिक ध्यान दिया जाए ताकि स्टूडेंट लेवल पर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेवल पर इनोवेशन को बढ़ाया जा सके? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने में दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी।
कि जब हम इंजीनियरिंग करिकुलम की बात करते हैं तो सभी ब्रांचेस का अपना अपना एक पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम की एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम कोर कोर्सेज बोलते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन की जहाँ तक बात है उसके संदर्भ में मुझे ऐसा ज्ञात है, चूँकि हमारे संस्थान में हम कर रहे हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरीके से लेकर आए हैं जिससे कि अक्रॉस द डिसिप्लिन्स बच्चे इन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो सके। अब इस सब में एक चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि वही विषय पढ़ाए जा सकते हैं जिनके लिए आपके पास अध्यापक उपलब्ध हों। यदि अध्यापक उपलब्ध नहीं है और मैं केवल कोई विषय अपने पाठ्यक्रम में जोड़ दूं तो उसका बहुत लाभ प्रतीत नहीं होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें पहले फैकल्टी डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा और यदि हम अच्छी फैकल्टी डेवलप कर पाए इस क्षेत्र में, जैसे आपको ज्ञात होगा कि कुछ वर्ष पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर एक पाठ्यक्रम में यूजी स्तर पर एक एनवायरमेंटल साइंस का पेपर कंपलसरी कर दिया गया था। वो इंजीनियरिंग में भी चलता है, सभी ब्रांचेस में चलता है। पहले वो एक क्रेडिट कोर्स होता था, उसके बाद उसको एक ऑडिट कोर्स की तरीके से कर दिया गया, लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी लगभग सभी ग्रेजुएट बच्चों के बीच में आने लग गई। मुझे लगता है कि प्राथमिक तौर पर अगर उसी के पाठ्यक्रम में हम कुछ यूनिट्स एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जोड़ देंगे तो हमारा एक स्तर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि सभी बच्चों में एनर्जी कंजर्वेशन के प्रति कुछ सेंसिटिविटी डेवलप हो सकेगी। अगला सवाल मेरा ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग के सेक्टर में हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ बहुत ही बड़े इनोवेशंस नज़र आए हैं। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसी तादाद में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में THDC ने भी अपने CSR के अंतर्गत उत्तराखंड में 10 से 12 लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई है। तो आपको लगता है इस तरह के जो डे टू डे इनोवेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग का जो लार्जर गोल है उसको किस हद तक पूरा कर पाएंगे? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट है ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है और आज के समय की आवश्यकता भी है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम केवल एक दृष्टिकोण से उस पर विचार नहीं कर सकते। भारत आज की तारीख में, यहाँ सब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे बैठे हुए हैं, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ बहुत फ्लॉरिश कर रही हैं उसमें से एक इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाते हैं तो हमारी वो जो ईवी वाली इंडस्ट्री, जो हमारी ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अभी आप आईसी इंजन बनाते हैं, आईसी इंजन में सैकड़ों प्रकार के छोटे मोटे कंपोनेंट बनते हैं। आप फरीदाबाद जाएं, गुड़गांव जाएं, पुणे के आसपास के क्षेत्रों में जाएं, चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में जाएं, इधर अहमदाबाद के आसपास जाएं, पंजाब में जाएं, यहाँ छोटी, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं जो अलग अलग कंपोनेंट बनाती हैं। तो ईवी जहाँ पर एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन केवल एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर हम बहुत बड़े लोगों के रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा, जो ईवी का कॉन्सेप्ट है उसमें जो उसका मूल है वो है बैटरीज। अब जो बैटरीज है, अभी भारत को उसके निर्माण में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो आज इनोवेशन की ज़रूरत है कि हम बैटरी के निर्माण में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाएं। बेहतर बैटरी के बारे में इनोवेशन करने की ज़रूरत है कि उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, एक बार चार्ज करने में वो ज़्यादा दूर तक जा सके, कैसे वो फास्ट चार्ज हो सके। और बैटरी के बनाने में अभी जो हमारी डिपेंडेंस है वो दूसरे देशों पर ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि जितने भी उसमें हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं वो हैवी मेटल्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो जिन अफ्रीकन देशों में उपलब्ध हैं उनकी जो माइंस हैं उन पर ऑलरेडी कुछ दूसरे देशों ने पूरा लगभग 99% आधिपत्य कर लिया है। तो अब अगर हम पेट्रोलियम चीज़ों से छुटकारा पाएंगे, जिसके लिए हम गल्फ पर डिपेंडेंट थे, तो अब उसकी बजाय बैटरी के लिए हम किन्हीं दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो नहीं आ पाएगी। तो ईवी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पर्टिकुलरली मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं,
आज की तारीख में, और हम THDC के कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में जितना ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और वो एक इनोवेशन का इतना ज़बरदस्त क्षेत्र है कि हम कैसे बेहतरीन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बना सकें, छोटी सी छोटी डिवाइसेस बना सकें जिसमें आप ज़्यादा देर तक एनर्जी स्टोर कर सकें। अगर वो बैटरीज हम बना पाए तो निश्चित रूप से हम सब लोग फ्यूचर का इनोवेशन ड्राइव कर सकेंगे। और अगर हमारे पास हैवी बैटरीज जो अभी होती हैं जिनका डिस्पोजल करना भी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रयोग करेंगे, और जैसा आपने चार्जिंग स्टेशंस के बारे में कहा गौरव जी, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बिजनेस मॉडल की प्रक्रिया है। जैसे जैसे वाहन बढ़ते गए देश में, वैसे वैसे पेट्रोल पंप्स की संख्या बढ़ती गई। आप लोग ऋषिकेश के आसपास रहते हैं, पहले आप देखें कि ऋषिकेश से हरिद्वार जब जाते थे तो केवल एक पेट्रोल पंप होता था जो ऋषिकेश के आउटर पे होता था। आज अब ऋषिकेश से हरिद्वार जाइए, कम से कम आपको 15 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे रास्ते में, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे ईवी बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइवेट लोग भी चार्जिंग स्टेशंस बनाने लगेंगे, वैसे वो बिजनेस मॉडल डेवलप हो जाएगा। लेकिन ईवी को प्रचारित करने में इनोवेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पर्टिकुलरली बैटरी के संदर्भ में इनोवेशन करने का बहुत स्कोप है। आप देखिए कि हैवी मेटल्स का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कैसे हम हाइड्रोजन सेल्स यूज कर सकते हैं जो कि बैटरी को रिप्लेस कर सके। अगर हम ये इनोवेशन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप भी एलॉन मस्क बन सकते हैं, क्योंकि एलॉन मस्क आज की तारीख में अगर कोई दुनिया में ये पूछे कि भाई सबसे अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है, सबसे अच्छी कार कौन सी है, तो उसका उत्तर है टेस्ला। और टेस्ला क्यों है? क्योंकि वो ईवी की दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं, और अब स्कोप है कि उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट किया जाए। अगर हम बैटरीज नहीं बना पाए, अच्छी बैटरीज बना पाए, सुपर कंडक्टर्स बना पाए, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रयोग होगा जो इनोवेशन भी करेगा और जो एनर्जी कंजर्वेशन में भी हमारा सहायक होगा। प्रोफेसर अग्रवाल, अभी आपने इनोवेशन की बात की, और इनोवेशंस में आइडिया और कॉन्सेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके अंतर्गत उत्तराखंड की स्टेट नोडल एजेंसी THDC इंडिया लिमिटेड है, जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो उत्तराखंड के स्कूली बच्चों के लिए हर साल एनर्जी कंजर्वेशन पर पेंटिंग कंपटीशन कराती है, जिसकी थीम एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड ही होती है। तो क्या आपको लगता है इस तरह के पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में इनोवेशन का जो माइंडसेट है उसको जनरेट करने में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस इनोवेशन के माइंडसेट के जनरेशन के बाद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, वो एनर्जी कंजर्वेशन में कितना योगदान दे सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पेंटिंग कंपटीशन की बात आपने की है, ये एक प्रकार का टूल है कि हम अपने दिमाग को कैसे मल्टी डायमेंशनल डेवलप करें। हमारी जो क्लासरूम एजुकेशन होती है, वो, मैं भी एक अध्यापक हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़ी यूनिडायरेक्शनल ट्रेनिंग देने वाली विधा है, और उस वजह से हमारा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए खेलकूद कराए जाते हैं, इसीलिए डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, इसीलिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। तो यदि वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हमारे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो कुछ अलग सोच रहा है, और जब वो उसके एक बार थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से वही हमारा उद्देश्य है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कहीं पर, और बिना दिमाग लगाए मैंने चिप्स खाया गाड़ी के अंदर और उसका रैपर शीशे से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो जो सेंसिटिविटी है एनवायरनमेंट के प्रति, स्वच्छता के प्रति, वो नहीं है। यदि वो सेंसिटिविटी मेरे अंदर डेवलप हो जाए तो यही उसका उद्देश्य है। और हम, हो सकता है सभी लोग इनोवेशन ना कर सकें, लेकिन वो सेंसिटिविटी तो निश्चित रूप से हम सबके अंदर डेवलप हो सकती है कि जिसके माध्यम से हम छोटा मोटा कुछ भी कंट्रीब्यूशन एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में कर सकें। देखिए, कुछ प्रयोग होते हैं जो मैक्रो लेवल पे होते हैं, और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो माइक्रो लेवल पर होते हैं। THDC हाइड्रो एनर्जी बनाता है, ये एक मैक्रो प्रयोग है जो कि बहुत बड़े लेवल पर असर करता है। लेकिन एक इंडिविजुअल के नाते मैं अपने लेवल पर भी कुछ काम कर सकता हूं, और मेरा आह्वान इस डिजिटल डायलॉग के माध्यम से उन सभी लोगों से यह है कि मैं अपने लेवल पर क्या कर सकता हूं, वो सेंसिटिविटी हमारे अंदर डेवलप होना है। स्कूल का बच्चा
उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि वो पूरे अपने परिवार को इन्फ्लुएंस करता है। मेरी बेटी है, वो उसके स्कूल में अगर कुछ भी बात बताई जाती है, वो आके सबसे पहले हम पर इम्प्लीमेंट करती है कि पापा ये करना है, ये नहीं करना है। तो यदि THDC ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से स्कूल बच्चों को टारगेट करता है कि वो इस बारे में कुछ सोचें, अब वो जब बच्चा, आपने उसको कंपटीशन का थीम दिया, वो यूट्यूब पे जाएगा, वो अलग अलग जगह जाके देखेगा कि हाँ भाई किस चित्र पर मुझे चित्रकारी करनी है जो मैं पुरस्कार भी जीतूं। लेकिन उस प्रक्रिया में साथ ही साथ उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी नज़र आते हैं और उसके माध्यम से ही सेंसिटिविटी डेवलप होती चली जाती है धीरे 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 धीरे। तो मुझे लगता है कि ये स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जो एनर्जी सेविंग और एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में IIT रुड़की ने हाल फिलहाल में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और नियर फ्यूचर में क्या आपका रोड मैप है? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? जी, so if we see what are the initiatives we have taken in recent past and what are we going to do. First, we have used the concept of smart metering in our entire campus, and we have installed devices everywhere so that the campus becomes a smart energy campus. And I am very happy to tell you that we are able to reduce our expenses on electricity consumption by about 20% with that. So that I feel is a good initiative. And now on our mobile phones we have this mobile app, and we have used technology extensively for making our campus a smart metered campus. Like my washing machine is there in my house, and you all are much expert in the field of electricity. Now in the whole day the prices of electricity keep changing. So now I will use electricity for those non-time dependent things when the rates are lowest. तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि भाई इस समय सबसे कम रेट है और मैं अपने मोबाइल से ही अपने घर में अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन कर सकता हूँ. So now these types of things are happening. We have used these sensor based lighting system for all our corridors, toilets, so that जहाँ पर 24 घंटे बिजली जलती रहती थी, अब जब कोई उसको यूज़ कर रहा है तभी वहाँ पर बल्ब ऑन होगा, तो उससे भी हमारा कंजम्पशन काफ़ी कम हुआ है. थर्ड, जो हमारे पास हमारे कैंपस में वी हैव समवेयर अराउंड 9000 स्टूडेंट्स, and for 9000 students you can understand that how much energy is required for their food cooking. Now for entire rice cooking we have used solar boilers, and that is also helping us in reducing our LPG consumption by about 15%. For water heating we are using 100% solar heaters, that is also reducing our energy consumption. So whatever is possible to shift from this electricity to renewable form of energy, that we have done. और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो हम स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू कर रहे हैं. दैट इज पार्ट 1 ऑफ आवर डिस्कशन. पार्ट 2, because we are educational institute, so it becomes our responsibility to train manpower in this area also. So there used to be a center which I think many of you know, AHEC, Alternate Hydro Energy Center. Now we have converted that center into a full-fledged academic department. So now it has become a full-fledged academic department, and we are starting a full-fledged UG course also in this area, so that we can provide more trained manpower also. Third, from Government of India we have received a mandate, because dams are also related to you can say green energy or renewable form of energy. So now we are also starting one MTech program in dam safety. So that is also you can say a bit of contribution from IIT Roorkee. That is unique, that is first of its kind in our country, that a full 2 years PG program in dam safety is started. This is with the support of Government of India, but IIT Roorkee has taken the initiative. We developed the curriculum. I am also part of that curriculum team, and our board has approved
that program, and next year we will be having the admissions in that program. So all these initiatives have been taken, and these things are in pipeline also. As you know that NRE and the renewable energy is very much, new and renewable energy is very much related to energy conservation, because it plays a very important role in producing clean energy. So how do you see this renewable energy and energy conservation? What is the correlation between them, and what is your perception about that? The percentage of renewable energy is very less, and we need to increase this percentage, because there are multiple challenges, particularly like if I just mention you one thing, that global warming. We all are familiar with this term global warming, I hope. Now this is a very vicious cycle, because when global warming is there, temperature is increasing. Even at place like this Tehri Engineering College, I can see air conditions are installed here, which supposed to be not there. Now because of global warming, you need more cooling, and when you do more cooling, you again contribute to global warming. So you have entered into actually a vicious cycle, that how extra cooling is contributing to the global warming, and global warming requires more cooling. And if we go with this conventional solution, we will never be able to solve this problem of global warming. So here we require some innovations, we require some kind of solutions which are maybe our age old practices, constructions of building in such a way which can help us not to use these artificial measures of cooling, and our buildings remain cool. And here comes the role of our renewable energy sources, because renewable energy are limited. Now global warming and immediate solution is install these ACs. So if we can apply the concepts of traditional way of living, our traditional knowledge, that will help us in finding some innovative solutions, and with that innovative solutions the requirement of energy will reduce, and then the component of renewable energy sources will increase. And that component of renewable energy sources, when it will increase, when you see, nobody wants to take antibiotics, but for immediate relief we all go to antibiotics. So when immediate relief is required, you don't think whether what is going to be the long term implications. So same thing is there. So if we change our habits, then only the component of renewable energy, then only the component of clean energy will increase in our overall energy portfolio of the country. So that is my way of understanding your question. Professor Agrawal, you mentioned about building construction. So if I may take cue from what you have already said, my next question to you is that what sort of innovative practices we do need to apply in terms of building constructions and architecture. We have recent illustrations like rainwater harvesting, then we have green concept of green building and all that. So can you elaborate on that? Yes, there are various agencies across the globe where they are promoting those buildings which do not require much of artificial need of energy, particularly for illumination purpose. So we should have those buildings where illumination is natural. The temperature is also naturally maintained. And let me give you one simple example which we have experienced in our campus itself, that those buildings which were old, and when we felt a need of air conditioning of those buildings, we installed air conditions. But some new buildings, when we constructed them, and from day one we were aware that we will be requiring air conditioning, and we made provisions of air conditioning at the designing phase itself, we are saving around 25 to 30% of energy in air conditioning of those buildings. So even if we don't have extraordinary solutions, just by preemptive the things कि भाई ये चीज़ मुझे करनी ही होगी, एयर कंडीशनिंग तो बनाना ही होगा इसको आगे चल के, तो वो चीज़ मैं अगर डिज़ाइनिंग फेज पर सोच लूँ तो मेरा जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. तो किसी भी चीज़ में गौरव जी
जो बेबी स्टेप्स होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ये सेंसिटिविटी हमारे अंदर आ जाए कि एनर्जी को बचाना है। और एनर्जी को बचाने का पर्पज़ ये नहीं है कि हमें कुछ त्याग करना है। मैं जो बात शुरुआत में कह रहा था कि हमें एनर्जी यूज़ करनी है, क्योंकि दुनिया में जो विकास के मापदंड हैं उन विकास के मापदंडों में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है, हमारा पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन कितना है। क्योंकि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसी के आधार पे आपका विकास की जो आपकी स्टेज है वो मानी जाती है। लेकिन वो कंजम्पशन जो है वो यूज़फुल कामों के लिए होना चाहिए, वो वेस्टफुल कामों के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये अगर सेंसिटिविटी आ जाएगी तो हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और अब आज की तारीख में तो जो कंस्ट्रक्शन है वो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन रहा ही नहीं है। पहले तो जैसे हम ईंट बनाते थे, ईंट बनाने में ही बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता था, सीमेंट बनाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ है। अब स्मार्ट मटेरियल्स आ गए हैं। अब स्मार्ट मटेरियल्स में तो आपका जो एनर्जी कंजम्पशन लेवल है वो अचानक से 10 से 15% कम हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट मटेरियल्स का यूज़ करें, जो बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका यूज़ करें, तो उससे भी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन के सेक्टर में आप जो PSUs हैं और कॉरपोरेट सेक्टर के हमारे सहभागी हैं, CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके रोल को कैसे देखते हैं? CSR के पॉइंट से मैं 3-4 चीज़ों में आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। बहुत सारे PSUs अपने CSR इनिशिएटिव्स के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में मैंने पाया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो वो एक बहुत आवश्यक कदम है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी सभी बच्चों ने भी ये महसूस किया होगा कि आजकल जो बारिश होती है वो बहुत तेज़ बारिश होती है। वो जो रिमझिम वाली बारिश होती थी पहले ज़माने में, वो रिमझिम वाली बारिश अब जो है ख़त्म हो गई है। अब जो रिमझिम वाली बारिश होती थी तब शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पानी जो होता था वो धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता था। अब जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी तो आया, लेकिन वो पानी बहुत तेज़ी से बह जाता है। तो अब जब वो बह गया तो हमारे किसी काम का नहीं है। आप तो यहाँ डैम के किनारे पे बैठे हैं, आपको पता है कि पानी जो आपने रखा हुआ है डैम में संभाल के, तो आपके लिए हार्ड कैश के तरीके से है। ये बह गया तो इसका मतलब आपके रुपए बह गए सारे। तो अब जब वो बारिश तो हो रही है, आप हर साल ये देखेंगे डेटा जो है कि वो ये बताता है कि पिछले साल से इस साल बारिश ज़्यादा हुई और ज़्यादा हुई और ज़्यादा हुई, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं जा रही है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है CSR के माध्यम से जो PSUs कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक जो मुझे लगता है जिसमें CSR किया जा सकता है और उसकी बहुत आवश्यकता है, वो है हमारी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करना। भारत सौभाग्य से इस समय बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और जिस बेल्ट में हम लोग हैं यहाँ पर गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें खूब होती हैं। तो उनकी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है उसमें हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं अभी। तो उनको कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कि उसमें अभी उसके दोनों नुकसान है। देखिए, जब हम पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो मीथेन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और मीथेन प्रोड्यूस होने से हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसका रेशो भी बढ़ जाता है, और पानी लगाने से हमारा जो पानी का जो दुरुपयोग है वो भी हो गया। तो अगर CSR के माध्यम से PSUs एग्रीकल्चरल लेवल पर कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, या उनके लिए जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि लेज़र लेवलिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो दैट ऑल्सो इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच कैन हेल्प our agricultural sector also, and it will help in the energy conservation also. उसके अलावा तीसरा जो मैंने देखा है बहुत सारी जगह PSUs ने जो फॉसिल फ्यूल का उपयोग है उसके रोकने के लिए या उसके बारे में सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स CSR इनिशिएटिव्स के माध्यम से किए हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अच्छी बात है, हम सबके पास पैसा आ रहा है और उससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। सबके घरों में एक एक कार नहीं, दो दो कार होती जा रही हैं, एक एक मोटरसाइकिल की जगह तीन तीन मोटरसाइकिल होती जा रही हैं। वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन उनका उपयोग किस तरीके से करना है वो सेंसिटिविटी आना भी बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा ना हो कि हमारे इस
पैसे की वजह से, हमारी समृद्धि की वजह से हम एक चीज़ से निकले कि हम पहले गरीब थे, अब समृद्ध हो गए और हम किसी दूसरी समस्या में फंस गए। तो वो डेवलपमेंट, वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी PSUs काम कर रही है, मैंने देखा है। और पर्टिकुलरली जो ऑयल सेक्टर की PSUs हैं वो इस क्षेत्र में बहुत काम करती हैं कि किस तरीके से आप लोगों को फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में, फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताएं। तो इस तरीके से जो PSUs का रोल है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना वृहद क्षेत्र है कि इसमें और भी काम करने की संभावनाएं हैं और PSUs और अच्छा काम कर सकती हैं यदि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें अपने साथ जोड़ ले, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैसेज हम बच्चों को दे सकते हैं वो सबसे स्ट्रांग मैसेज हो सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और अगर हम जितने एल्डरली लोगों को कोई मैसेज देते हैं उसका प्रभाव उतना ही कम होता है। तो बच्चों को टारगेट करें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, और उसके लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बढ़िया पार्टनर कोई हो नहीं सकता जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। Since you were talking about messaging, so since this event has been organized by Social Media Center, so what do you see, what is the role of social media in creating awareness in terms of energy conservation? देखिए, सोशल मीडिया की जो ताकत है उससे तो आज की तारीख में कोई डिबेट की गुंजाइश है नहीं। हम सभी लोग जितने इस हॉल में बैठे हैं, मुझे लगता है सबके पास उनका फेसबुक अकाउंट होगा, कुछ लोग निश्चित रूप से ट्विटर भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर होंगे, बहुत सारे लोग कू करते होंगे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर होंगे। तो सोशल मीडिया के कई सारे लाभ हैं और यदि हमने टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर्स उपयोग में नहीं किए तो हमारी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। तो सोशल मीडिया तो एक हमारी तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना वो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है कि आप कितने अट्रैक्टिव मैसेजेस उसमें लेकर आते हैं जो कि लोग उनको फॉलो करें, उनसे सीखें, उनको उपयोग में लाएं। अब जैसे आप मान लीजिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऋषिकेश और आसपास के कॉलेजेस के लोग हैं वो इस प्रोग्राम में किसी तरीके से इसको देखें, इसका लाभ लें, बाद में अपने बच्चों को दिखाएं, तो निश्चित रूप से हम जो मैसेजिंग देना चाहते हैं उसका लाभ होगा। क्योंकि जहां सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, एक तो उसका लाभ ये है, लेकिन दूसरा नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस की जो लाइफ है वो बहुत कम है। वो इतनी तेज़ी से उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, एक के बाद दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ आती रहती है कि उस पर हमारा अटेंशन बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। तो हमें अपने मैसेजेस में वो रोचकता भी लानी पड़ेगी कि हमारे मैसेजेस की जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा हो, और जो प्रोग्राम आपने आज किया इसको आप अपने YouTube चैनल पर लोड करेंगे, उसके बाद इसकी जो ट्वीटिंग है वो कितने दिनों के साइकिल के बाद दोबारा होती रहे जिससे कि वो मैसेज ऊपर बना रहे। तो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस को फ्लोट करने में भी कुछ ना कुछ इनोवेशन की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। At last, what message you want to give to the students of THDC Institute of Hydropower Engineering and Technology based on the theme innovation and energy conservation? देखिए, दो तीन मैसेजेस हो सकते हैं और वो मैसेजेस इस महाविद्यालय के लोकेशन को देखते हुए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक मैसेज तो ये है कि आप इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में हम ये भी जानते हैं कि गर्मियों के समय में जो फॉरेस्ट फायर है वो एक प्रकार का एनर्जी के लॉस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पेड़ में एनर्जी है और उसी का जब हम वेस्ट कर देते हैं उसको जंगल की आग की तरीके से, तो कुछ इनोवेशंस आप कर सकते हैं कि हम फॉरेस्ट फायर को कैसे प्रिवेंट करें, उस एनर्जी को कैसे हम पॉजिटिव तरीके से डेवलप करें। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादातर बच्चे हो सकता है इसी क्षेत्र के होंगे, तो फॉरेस्ट फायर के ऊपर आप लोग काम करें कि भाई इसको पॉजिटिव तरीके से कैसे लेकर आए। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पहाड़ में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जंगल से अपने जो है फायर के लिए सामान लेकर आते हैं, लकड़ी लाते हैं और उनका जो डेली का बहुत बड़ा समय उसी चीज़ पे चला जाता है। तो मे बी इफ़ यू डेवलप ए गुड solution for this forest fire and use that
फॉरेस्ट फायर का जो आपको कारण पता ही होगा, क्योंकि हम सब जिस क्षेत्र में रहते हैं वो पाइन नीडल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और पाइन नीडल्स इज़ फुल ऑफ ऑयल। तो उस पाइन नीडल्स को अगर आप किसी तरीके से क्लीन कर सकें और उससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो कि हम यूज़ कर सकें अपनी वुड रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करते हुए, तो एक सीधा सा सिंपल सोल्यूशन बन सकता है। तो ये एक क्षेत्र है काम करने का। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब इस क्षेत्र में हम लोग आते हैं तो बहुत सारा सरकार का भी फोकस है, आप भी चाहते हैं कि टूरिज्म इस क्षेत्र में डेवलप हो। अब जब टूरिज्म डेवलप होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होंगी जिनको हमें लगता है कि ये गतिविधियां हमारे वातावरण को या हमारे एनर्जी प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो सस्टेनेबल टूरिज्म किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उससे रिलेटेड इनोवेशंस का बहुत स्कोप है हमारे पास। हमें आर्थिक विकास भी चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास की कीमत ऐसी ना हो जाए कि उसको हम कभी भरपाई ना कर सकें। तो वो एक दूसरा क्षेत्र है कि सस्टेनेबल टूरिज्म केवल किताबी विषय ना रह जाए, केवल न्यूज़पेपर हेडलाइन बन के ना रह जाए, उसके लिए हम किस प्रकार के प्रयोग करें कि वास्तव में सस्टेनेबल टूरिज्म ही बना रहे। तीसरा जो क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग यहाँ सब जानते हैं कि पहाड़ पर जीवन उतना आसान नहीं होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एनर्जी के उपयोग में व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से कमी ला सकते हैं। मेरे मस्तिष्क में एक जैसे उदाहरण आ रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग ये स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, और वो स्मार्ट वॉच जो है वो दिन भर आपका ट्रैक करती है कि आपने कितने कदम चले, कितना कैलोरी बर्न किया, ये सब आपका पूरा रिकॉर्ड आता रहता है। इसी तरीके से हम में से जो बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के होंगे, क्या वो कुछ इस तरीके का मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो हमारा डेली में हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसका प्रोफाइलिंग कर सके, और हम देखें कि भाई कल मैंने इतने जूल एनर्जी खर्च किया था या इतने यूनिट्स, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, इतने यूनिट एनर्जी खर्च किया मैंने कल दिन भर में, और आज मैंने उसमें कुछ कमी की या बढ़ोतरी की। तो मेरी खुद की जो, जब हमें कोई चीज़ सामने दिखती है कि एक चार्ट बना हुआ आ रहा है कि किस तरीके से मेरा एनर्जी प्रोफाइल डेवलप हो रहा है, तो वो भी एक हमारे को याद दिलाने के लिए कि हाँ भाई मैं एनर्जी कंजम्पशन के प्रति सजग हूँ, वो भी एक इनोवेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों से हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी जो उनको आती है, जो विद्या उनको आती है, उसका उपयोग करते हुए कैसे वो ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आएँ जिसका हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, और आपको भी अपने ऊपर गर्व हो कि हमने कोई चीज़ ऐसी दी जो कि वास्तव में समाज के काम आ रही है। Thank you so much, Professor Agarwal. It was pleasure talking to you. Thank you. Very nice.